رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آواز ماحول میں چھائی خاموشی کو چیر دیتی تھی۔ ایس پی معاذ ہمدانی کی گاڑی اپنے علاقے میں داخل ہوئی۔ وہ آج کل ایک نئے کیس پر کام کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیر سے گھر آ رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس کی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ ایک نڈر اور بہادر پولیس آفیسر ہے، اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھومتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے گیٹ کے سامنے روکی تو اونگتا ہوا چوکیدار فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور مستعدی سے دروازہ کھولا تھا۔ معاذ نے نفی میں سر ہلاتے اسے دیکھا اور گاڑی گیٹ سے اندر لے جانے لگا، اور پھر اس نے چوکیدار کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم دیتا ہوں، اور تم یہاں بیٹھے اونگ رہے ہو۔ اس طرح سے تو کوئی بھی میرے گھر میں گھس سکتا ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ میرا کام کیسا ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ آنکھیں کھول کر بیٹھا کرو، ورنہ میں تمہیں نوکری سے فارغ کرنے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ معاذ نے چوکیدار کی لاپرواہی پر اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ چوکیدار نے سر جھکائے اس کی ڈانٹ سنی۔ معاذ نے گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آج کل معاذ کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ایک قتل کے کیس پر کام کر رہا تھا، اور وہاں سے اسے مسلسل دھمکیاں مل رہی تھی۔ وہ لوگ نہ صرف معاذ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے تھے، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ معاذ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے وہ آج کل ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گیا۔ اسی وجہ سے وہ چوکیدار پر غصہ کر گیا تھا، کیونکہ اسے چوکیدار کی لاپرواہی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حد ہو گئی ہے، یہ لوگ لاؤنج کا دروازہ تک بند کر کے نہیں سوئے۔ معاذ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پلٹ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا۔ اس کے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اسے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر گھر میں سبھی لوگ سو رہے تھے، اور وہ اس وقت کسی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے لاؤنج پار کر کے کچن میں چلا آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ آن کی اور فریج کھول کر دیکھا تھا۔ فریج میں اس کا پسندیدہ مٹن پلاؤ رکھا تھا۔ کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک چمک گئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو دوپہر تک کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ بھوک لگ لگ کر اس کی بھوک اب ختم ہو گئی تھی، مگر اب اسے بھوک کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے ایک پلیٹ میں چاول ڈالے اور انہیں گرم کرنے اوون میں رکھا، جبکہ چولہے پر اس نے چائے کا پانی چڑھا دیا۔ چند ہی منٹوں میں پلاؤ گرم ہو گیا اور وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا، جبکہ چائے بن رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے چائے کپ میں نکالی اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، بس اب آرام کرنا چاہتا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب ہی ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ سو رہے تھے۔ معاذ نے محبت بھری نظروں سے مسکراتے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، اور پھر آہستہ سے دروازے کو بند کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ اس نے بھی کمرے کی لائٹ جلانے کی کوشش نہیں کی۔ چائے کی مگ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ کمرے میں کون موجود ہے۔ اگر اسے بروقت پتہ چل جاتا تو شاید اتنی غلط فہمی نہ پھیلتی، مگر وہ بہت تھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی نیند کی کیفیت میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی چائے اب تک ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ میں چائے کا مگ خالی کیا اور بستر پر ڈھہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر نیند میں جاتا، اسے اپنے بستر پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھا اور ایک جھٹکے میں سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی اینک اٹھائی اور کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ لمحوں میں پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ معاذ نے غصے سے اور حیرانی سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جس کی عمر بمشکل 19-20 برس تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔
माज ने सख्ती से सवाल करने पर वो बुरी तरह सहम गई, मगर अगले ही पल उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? कब से मेरे कमरे में मौजूद हो? माज ने इस बार मजीद सख्ती से उससे सवाल किया था और बगौर उसे देखा था, मगर उसके सामने वो खाली हाथ खड़ी थी। उसने माज के कमरे से कुछ नहीं चुराया था, जबकि माज उसे पुलिस की निगाह से देख रहा था। जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? माज जोर से उस पर चिल्लाया, जबकि सामने खड़ी लड़की का दिल सहम सा गया, मगर वो खुद पर काबू पाना चाहती थी, इसलिए खुद को मजबूत जाहिर किए खामोश खड़ी रही। आगा जान इस वक्त स्टडी रूम में मौजूद थे। स्टडी रूम माज के कमरे के ऐन नीचे था। उन्हें ऊपर से शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। आगा जान आज जल्दी सो गए थे, मगर अब उनकी आंख खुली तो उन्हें दोबारा से नींद नहीं आई, इसीलिए वो स्टडी रूम में चले आए थे। मगर उस शोर की आवाज़ सुनकर वो ठुठक गए। ये आवाज़ें वाज़ेह तौर पर माज के कमरे से आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी पर चीख रहा था। आगा जान परेशान होकर स्टडी रूम से बाहर निकले और माज के कमरे की तरफ जाने लगे, जबकि माज गुस्से में सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा। क्यों? मुंह से कुछ क्यों नहीं कह रही? माज को उस लड़की से खतरा महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वो खाली हाथ उसके सामने खड़ी थी। उसके पास किसी किस्म का कोई असलहा नहीं था और ना ही अब तक उसने यहाँ से कुछ चुराया था। माज ने एक ही जस्त में उस लड़की के सर पर पहुंचा और सख्ती से उसके बाजू को थामा। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। मुझे लोगों की ज़बान खुलवानी बहुत अच्छे तरीके से आती है। तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर है अपना मुंह खोल दो और मुझे बताओ कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ भेजा? माज के सर्द लहजे में सवाल पर उसका लहजा इस कदर सर्द था कि माहम को उसके लहजे की ठंडक अपनी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हुई। माज उसके बिल्कुल करीब खड़ा, उसका बाजू झंझोड़ते उससे सवाल कर रहा था। माहम ने नजरें उठाकर उसे देखा। दोनों की निगाहें चंद लम्हों के लिए टकराईं। माहम ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया। इसी असना में माज के कमरे का दरवाज़ा खुला और आगा जान कमरे में दाखिल हुए, मगर सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गए। उनका जान से अजीज पोता रात के इस पहर किसी अनजान लड़की के करीब खड़ा था। माज ने पलटकर कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को देखा और आगा जान को देखकर उसे अपने पैरों तले से ज़मीन से रखती हुई महसूस हुई। आगा जान की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखकर उसे अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो रात के इस पहर अपने कमरे में एक अनजान लड़की के पास था। माज सरद से माहम से दूर हुआ। उसने माहम का बाजू एक झटके से छोड़ दिया, जबकि आगा जान की आंखें पहले तो बेयकीनी से फैल गईं और फिर उनके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। उनके चेहरे पर छाई खौफनाक संजीदगी पर माज ने बखूबी महसूस कर लिया था। ये सब क्या है? माज! आगा जान की करख्त आवाज़ उसके कमरे में गूंजी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर घर के सभी अफराद उठ गए थे और माज के कमरे में आ गए थे, जबकि माज बेगुनाह होते हुए भी उनके सामने मुजरिम बना खड़ा था। आगा जान, मैं आप सबको समझाता हूँ, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। माज जब मजीद 2 कदम माहम से पीछे होते आगा जान को अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा। सभी लोग हैरत से आंखें फाड़े माज के कमरे में इस लड़की को देख रहे थे, जबकि समीना बेगम ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। आज तक माज ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिसकी वजह से उन्हें सर झुकाना पड़े, मगर आज माज के कमरे में एक अनजान लड़की की मौजूदगी ने उन्हें शर्मसार कर दिया था। वो अपनी आंखों में बेयकीनी भरे अपने बेटे को देख रही थी, जो बेहद परेशानी से उन सबको देख रहा था। इससे पहले कि माज कुछ कहने की कोशिश करता, माहम अपनी जगह से आगे बढ़ी और आगा जान के कदमों में बैठकर रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियों से पूरा कमरा गूंजने लगा। माहम ने आगा जान के सामने हाथ जोड़ दिए थे, जबकि माज हैरानी से इस लड़की की अदाकारी को देख रहा था। आप लोग ही इंसाफ करें, आपके बेटे ने मुझसे मोहब्बत का खेल खेला है, मुझसे शादी के वादे किए हैं, और अब जब मैं 2 माह की हामला हूं तो ये मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। माहम ने आगा जान के सामने रोते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। माहम की बात सुनकर सभी लोग सदमे से माज को देखने लगे।
جبکہ معاذ کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جو آج جانے کہاں سے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، وہ اس کے بچے کی ماں بننے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ماہم نے معصومیت سے کہتے کن اکھیوں سے معاذ کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ جھوٹی، فریبی ہے یہ لڑکی، میں تو اسے جانتا تک نہیں، معاذ نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اب اپنے گھر والوں کی وجہ سے یہ مجھے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں تو اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں، اگر یہ بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دیں گے تو میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اب تو میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں، ماہم نے روتے ہوئے دہائی دی تھی، جبکہ معاذ کا سر بری طرح چکرا گیا۔ آغا جان کے قدموں میں زمین پر بیٹھی لڑکی اتنی مہارت سے جھوٹ بول رہی تھی کہ اسے خود پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ معاذ غصے میں پاگل ہوتا ماہم کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ماہم کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ معاذ نے اسے خود سے دور کیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ میں ایک پولیس والا ہوں، ایک لمحے میں تمہیں جیل کی دیواروں کے پیچھے قید کر سکتا ہوں۔ سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے تحت اس گھر میں آئی ہو، ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گا، معاذ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ماہم نے مدد طلب نظروں سے پلٹ کر آغا جان کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ اس وقت غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ معاذ، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، آغا جان کی آواز کمرے میں گونجی۔ معاذ نے آغا جان کی طرف دیکھا، لیکن آغا جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، مجھے پھنسا رہی ہے، میں اس لڑکی سے سچ اگلوا کر رہوں گا، معاذ کے سرد اور خشک لہجے میں کہنے پر اور خونخوار نظروں سے ماہم کو گھورنے پر۔ معاذ، میں نے کہا نا اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غلطی کر کے تم اس غلطی پر اب شرمندہ نہیں ہو؟ ہم لوگوں نے تمہیں یہ سکھایا تھا، آغا جان نے غصے سے معاذ سے کہا۔ معاذ نے ماہم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آغا جان، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، معاذ نے ایک بار پھر سے آغا جان سے کہا تھا۔ جھوٹ نہیں بول رہی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کریں گے، اور اب جب میں حاملہ ہوں تو یہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہے ہیں، بلکہ اب تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں پلٹ کر اپنے گھر نہیں جا سکتی، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں شادی سے پہلے ہی ماں بننے والی ہوں تو وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، اسی لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ساتھ انصاف کریں، ان سے کہیں مجھ سے شادی کر لیں، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اگر انہوں نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر واپس پلٹ کر نہیں جاؤں گی، ماہم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہاں سب کا دل پگھل گیا۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ دو، میں تمہارے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، اس طرح سے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آتے، وہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ معاذ کے بابا احمد ہمدانی نے معاذ کو غصے سے گھورتے ماہم کو نرمی سے کہا۔ ان کی بات سن کر ماہم نے بے اختیار تھوک نکلا۔ نہیں، میرے گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے، آپ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ اس بچے کو بھی جان سے مار دیں گے۔ ماہم زاروں قطار رونے لگی، جبکہ کمرے میں کھڑے سبھی لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کریں، جبکہ معاذ سرے سے ہی اس لڑکی کو جاننے سے انکاری تھا۔ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں اب مجھ سے شادی نہیں کر سکتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ابارشن کروا لوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ماں مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ معاذ نے دل ہی دل میں اس کی اداکاری کو داد دی۔ آپ لوگ میرا یقین کریں، میں نہیں جانتا کہ یہ لڑکی کیوں اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے پھنسا رہی ہے، معاذ نے سب کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر میری جگہ آپ لوگوں کی بیٹی ہوتی تو آپ لوگ یہی کرتے اس کے ساتھ، ماہم نے چلاکی سے ہمدردی وصولنے کے لیے کہا تھا، اور اس کا نشانہ ٹھیک لگا تھا۔ کمرے میں آغا جان کی آواز گونجی۔ ابھی اور اسی وقت ان دونوں کا نکاح ہوگا، اور اب میں اس معاملے میں مزید کوئی بحث نہیں کروں گا، آغا جان نے سخت لہجے میں کہا، اور سب کو ہکا بکا چھوڑ کر
माहम को अपने साथ लिए कमरे से निकल गए। वो माहम को लेकर लाउंज में आ गए थे और निकाह ख्वाह को फोन करके बुला लिया गया था, जबकि माज के माँ बाप उसे अफसोस भरी नजरों से देखते कमरे से निकल गए। माज आगा जान की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए सुन सा रह गया। उसे जब होश आया तो कमरे में कोई भी नहीं था। वो तड़प कर कमरे से बाहर निकला। सभी लोग लाउंज में सोफों पर बैठे थे, जबकि माहम आगा जान के बराबर में सर झुकाए बैठी रो रही थी। ये लड़की माज को पल पल हैरान कर रही थी। माज के लाख इनकार के बावजूद कुछ ही देर में आगा जान ने उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया, जबकि माज तो हक्का बक्का रह गया। वो एसपी माज हमदानी था, मगर अपने घर में उसकी एक नहीं चली थी। माज ने जब्त से माहम को घोरा, जो अब इत्मीनान से आगा जान के बराबर में बैठी थी। माज, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी कि तुम एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे, और जब इसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम इसे अपनाने से ही इनकार कर दोगे। हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो हरगिज नहीं की थी। आज से ये तुम्हारी बीवी है। अगर तुमने इसके साथ बुरा सलूक करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान ने सर्द नजरों से माज को देखते कहा, मगर माज इस बार उनकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश रहा। उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा था, जबकि माहम ने भी माज की इस खामोशी को नोट किया था। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। जो वो चाहती थी वो हो गया था। अब आगे का सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे, जबकि समीना बेगम माहम को माज के कमरे में छोड़ गई थी। माज जाने कितनी ही देर लाउंज में बैठा रहा। उसका जहन माऊफ हो चुका था। वो आगे का कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है और किस मकसद के तहत उसके घर में आई है। वो वहीं बैठा अपने सारे दुश्मनों का हिसाब किताब लगा रहा था, जो इस लड़की को उसके घर में भेज सकते थे, मगर अब तक कोई भी नाम उसे समझ नहीं आया। वो ठंडी सांस भरता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। समीना बेगम उस वक्त उसके कमरे से निकल रही थी। उन्होंने अफसोस भरी निगाहों से अपने बेटे को देखा, जो हद से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। अम्मी, आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? समीना बेगम खामोशी से उसके बराबर से गुजरने लगी थी। माज ने धीमे लहजे में उन्हें मुखातिब करके पूछा। समीना बेगम ने तड़प कर अपने बेटे की तरफ देखा। मैं तो इतना जानती हूँ कि कोई लड़की इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती जब तक कोई बड़ी बात ना हो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने के लिए इतने बड़े झूठ का सहारा लिया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। समीना बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। माज ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर बेख्तियार आगे बढ़कर उनके गले से लगा। अम्मी, आपका बेटा मर तो सकता है, मगर ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। मैं कैसे किसी लड़की के साथ खेल सकता हूँ? माज ने नम लहजे में कहा। अभी अपने कमरे में जाओ। समीना बेगम ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते कहा और वहां से अपने कमरे में चली गई। माज ठंडी आह भरता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर माहम इत्मीनान से बैठी थी। ये बात माहम ही जानती थी कि वो खुद को कितनी मुश्किलों से मजबूत किए यहाँ बैठी थी, वरना उसका दिल किसी चिड़िया के मानंद लरज रहा था। माज ने सुर्ख नजरों से माहम की तरफ देखा। माहम फौरन ही सीधी होकर बैठ गई। माज मुनासिब कदमों से चलता उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अब मुझे सीधी तरह से जवाब दो कि ये किसका बच्चा है जिसे तुम जबरदस्ती मेरे सर पर लादने की कोशिश कर रही हो? माज ने अपने सीने पर हाथ बांधते सपाट लहजे में सवाल किया। माहम ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी। आपका ही बच्चा है, और किसका हो सकता है? माहम ने नजरें चुराते हुए कहा था। माहम की बात सुनकर माज ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींच ली और एक ही झटके में माहम को बेड से उतार कर अपने सामने खड़ा किया। मुझे सच सच बता दो, किसका बच्चा लेकर तुम मेरे सर पर आकर बैठ गई हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इतना बेगैरत मर्द नहीं हूँ कि मैं अपने निकाह में मौजूद औरत के पेट में किसी और का बच्चा बर्दाश्त करूंगा। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे निकाह करने का,
اب میں بھی جب تک تمہاری اصلیت نہیں جان لوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، اور جس دم تمہاری اصلیت جان لوں گا اس دن خود تمہیں اور تمہارے اس بچے کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالوں گا۔ معاذ نے سرد لہجے میں اسے دھمکی دی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ کے ایک طرف آ کر لیٹ گیا۔ یہ میرا بیڈ ہے اور میں یہاں سوؤں گا، تم پورے کمرے میں کہیں بھی سو سکتی ہو۔ معاذ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماہم نے ضبط سے بیڈ پر پھیلے اس کے وجود کو دیکھا اور صوفے کی طرف چلی گئی۔ معاذ صبح سویرے پولیس اسٹیشن چلا آیا تھا۔ اسے جلد از جلد ماہم کے بارے میں سب کچھ پتہ لگانا تھا، مگر اسے کہیں سے بھی ماہم کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ مس کر رہا تھا۔ معاذ پریشان بیٹھا تھا جب عمیر لغاری آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ معاذ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ اسے دیکھ کر معاذ کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ اس نے ناگواری سے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ اگر اپنے بھائی سے ملنے آئے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، معاذ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عمیر لغاری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ آج میں اپنے بھائی سے ملنے نہیں آیا، بلکہ ایس پی تمہاری خیر خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ عمیر لغاری نے معاذ کے سامنے رکھا چائے کا کپ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتے کہا۔ معاذ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ میں نے تو تم سے بہت بار کہا تھا کہ میرے بھائی کو جیل میں بند مت کرو، میں تمہیں کروڑوں روپے دینے کو تیار تھا، مگر تمہارے سر پر تو ایمانداری کا بھوت چڑھا ہوا۔ اپنی وردی سے بہت محبت ہے نا تمہیں، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں بہت جلد اپنے بھائی کو یہاں سے نکال لوں گا اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا کیریئر بھی ختم کر دوں گا۔ عمیر لغاری نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے پتھریلے لہجے میں کہا۔ اور ویسے بھی جانے تک کیوں اس کیس میں اپنی جان لگا رہے ہو، جبکہ جن کا بیٹا مرا ہے وہ لوگ تو میرے بھائی کے خلاف ایکشن لینے کو بھی تیار نہیں، پھر تم کیوں اپنی جان اور اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ عمیر لغاری نے افسوس سے ایس پی معاذ کی طرف دیکھتے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ معاذ نے سخت نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھا۔ اس کی دھمکی بھی اسے اس کیس سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ان دنوں معاذ ایک کیس پر کام کر رہا تھا۔ اس نے عمیر لغاری کے چھوٹے بھائی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا تھا، کیونکہ اس نے معمولی سے جھگڑے میں ایک لڑکے کو مارا تھا جو بالکل بے گناہ تھا اور اپنے ماں باپ کا واحد سہارا تھا۔ عمیر لغاری نے اس کے گھر والوں کو اس قدر ڈرایا کہ ان لوگوں نے عمیر کے بھائی کے خلاف کیس لڑنے سے ہی انکار کر دیا اور راتوں رات اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب سبھی معاذ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب تک اسے اپنی اس کوشش میں ناکامی ہو رہی تھی۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے سے مل جاتے تو عمیر لغاری کے بھائی کے خلاف کیس مزید مضبوط ہو جاتا۔ عمیر لغاری کے بھائی نے دولت کے نشے میں چور ہو کر اس لڑکی کو جان سے مارا تھا۔ معاذ کا سر بری طرح دکھنے لگا۔ ایک تو کل رات کو وہ لڑکی جانے کیوں مصیبت بن کر اس کے سر پر نازل ہو گئی تھی، اور ابھی تک اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ معاذ کو ہر طرف سے سارے راستے بند دکھائی دے رہے تھے۔ معاذ نے فی الحال ماہم کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کے لیے یہ کیس اس وقت سب سے اہم تھا۔ ماہم کی آنکھ کھلی تو معاذ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ ماہم نے سکون کی سانس لی۔ وہ مزید اس کی گھورتی ہوئی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رات بھر چھوٹے سے صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد تھا۔ وہ جلدی سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، مگر اب بھی اس کی آنکھوں سے نیند اٹھ چکی تھی اور اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر نیچے آئی تو سمینہ بیگم کچن میں موجود تھی۔ ماہم نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔ سمینہ بیگم نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی چال ڈھال سے وہ انہیں حاملہ بالکل نہیں لگی تھی۔ ماہم نے ان کی ایکس رے کرتی نظریں خود پر محسوس کر لی تھی، جبکہ سمینہ بیگم کچھ پریشان سی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ ماہم حاملہ نہیں ہے، پھر وہ کیوں اس طرح سے ان کے گھر میں آئی تھی؟ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔
आंटी, मैं आपकी कुछ मदद करा दूं? माहम ने उनसे झिझकते हुए सवाल किया। नहीं बेटा, तुम बैठो, बस नाश्ता बन गया है, समीना बेगम ने नर्म लहजे में कहा। वो चाहकर भी उसके साथ अपना लहजा सख्त नहीं कर सकी थी। माहम के चेहरे पर जितनी मासूमियत छाई हुई थी, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। उन्होंने माहम के सामने नाश्ता रखा। नाश्ते को देखकर माहम की भूख जाग उठी और वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। उसे याद आया था कि उसने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। यकदम ही उसकी आंखों में आंसू आए, मगर उसने अपनी पलकें झपक कर अपने आंसू अपने अंदर उतार लिए। मगर समीना बेगम की नजरों से ये मंजर छुपा नहीं रह सका। माज घर में दाखिल हुआ तो माहम आगा जान के साथ बैठी थी। उसने खूनख्वार नजरों से माहम की तरफ देखा और अपने कफ के बटन खोलता वहीं बैठ गया। एक मुलाजिम उसके लिए पानी लेकर आ गया था। माज ने एक घूंट में पूरा ग्लास खत्म किया, मगर उसकी नजरें अब भी माहम पर ही जमी हुई थी। वो जाने आगा जान को कौन कौन से किस्से सुना रही थी, जबकि माज बैठा इत्मीनान से उसका जायजा ले रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस कदर मासूम दिखने वाली लड़की इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है। इसी असना में एक मुलाजिम ने घर में प्रेस के आने की इत्तला दी। माहम ने चौंक कर माज की तरफ देखा। इसका मतलब था कि उमैर लगारी ने अपना खेल शुरू कर दिया था। माज उठकर बाहर चला गया। प्रेस के बहुत से लोग उसके घर के छोटे से लॉन में जमा थे। सूरज डूबने के करीब था। माज उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। आजकल वैसे भी माज उमैर लगारी के भाई की वजह से खबरों में आता रहता था। प्रेस वाले अक्सर उसका इंटरव्यू करने आते रहते थे, क्योंकि माज ने इस मुल्क की सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत के भाई को गिरफ्तार कर रखा था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। माज उन लोगों के सामने जाकर खड़ा हुआ। कैमरों की लाइट्स ने उसके चेहरे का अहाता कर रखा था। सारे माइक्स का रुख उसकी तरफ ही था। सर, हमने सुना है आपका किसी लड़की के साथ रिलेशन है और आपने शादी से पहले उसे हमला कर दिया। एक प्रेस वाले ने चुपते हुए लहजे में उससे सवाल किया। उसकी बात सुनकर माज बुरी तरह चौंक गया। कल रात तक तो ये बात उसे खुद भी मालूम नहीं थी, और वो लड़की सुबह से कहीं गई भी नहीं थी। माज को एक एक लम्हे की खबर थी। फिर कहाँ इस लड़की के यहाँ आने के अगले रोज ही प्रेस वाले उसके घर आ गए थे और इस लड़की के बारे में सवाल कर रहे थे। माज को कोई बहुत बड़ी गड़बड़ महसूस हुई। ये मामला बिल्कुल सीधा नहीं था। माज ने ठंडी सांस भरकर खुद को पुरसकून किया और अपने सीने पर हाथ रखकर इत्मीनान से खड़ा हुआ। उसे अभी मजीद चुपते सवालात का सामना करना था। वो जानता था कि अब उसकी इज्जत की धज्जियां बिखेरी जाएंगी, लेकिन इन सब के पीछे कौन था वो अब भी जान नहीं पा रहा था। आप बहुत ईमानदारी का राग अलाप रहे होते हैं, मगर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते आपको कुछ याद नहीं आया? एक और प्रेस वाले ने उसकी जात पर हमला किया था। माज समझ गया था कि ये लोग खरीदे हुए हैं, इसलिए माज खामोशी से उनके लिए सवाल सुन रहा था। उसने अब तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इन्हीं लोगों के जरिए उस शख्स तक पहुंचना चाहता था जिसने ये सारा खेल रचाया था। आपने इस मुल्क के सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियत उमैर लगारी के भाई को हवालात में बंद कर रखा है, जबकि आपको भी अब हवालात के पीछे होना चाहिए। आपकी इस हरकत के लिए आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। एक और प्रेस वाला अपना हिस्सा डाल रहा था, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की थी। एक लम्हे में ही माज जान गया था कि इस सारे खेल के पीछे उमैर लगारी है। उसने प्रेस वालों को यहाँ भेजा है, और वो लड़की भी उमैर लगारी के कहने पर इस घर में आई है। वो लोग भूल चुके थे कि उनके सामने एसपी माज हमदानी खड़ा है, जो अपनी काबिलियत के भरोसे पर यहाँ तक पहुंचा था। माज ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखा। कैमरों की फ्लैश लाइट से उसकी आंखें चुंदी आ रही थी, मगर उसके एतमाद में कोई कमी नहीं आई थी। फिक्र न कीजिए, जल्द आप लोगों को आपके सारे सवालात के जवाबात दूंगा। इसके लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं बहुत जल्द आप लोगों को खुद बुलाऊंगा। माज ने सर्द मगर नरम लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। पीछे से प्रेस वाले उसे बुलाते रह गए, मगर उसने किसी की ना सुनी। माज के वहां से जाने के बाद चौकीदार ने सबको बाहर निकाल दिया।
माज लाउंज में दाखिल हुआ तो सभी लोग दुम साधे उसी की तरफ देख रहे थे, जबकि माहम की नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। माज उसके सामने जाकर टेबल पर बैठ गया। माहम ने अभी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, जाने क्यों वो उसकी तरफ नहीं देख पा रही थी। माज ने उसके माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे से कतरे चमकते हुए वाज़ेह महसूस किए थे। अगर ये लड़की इतनी ही झूठी और धोखेबाज नहीं थी तो उसे घबराना नहीं चाहिए था, और नजरें तो हरगिज भी नहीं चुरानी चाहिए थी। आगा जान ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर माज ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और खुद सर्द नजरों से उसे देख रहा था। माम को उसकी नजरें अपने जिस्म में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। माज ने अपनी जेब से गन निकाली और उसे लोड किया, और अगले ही पल वो गन को माहम के सर पर तान चुका था। समीना बेगम ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा। आगा जान ने जुजुब होकर अपने पोते को देखा था, जो अपनी ही बीवी के सर पर गन ताने बैठा हुआ था, जबकि माहम को अपने कदमों तले से जान निकलती महसूस हुई। उसने खौफ से माज की तरफ देखा, जो इस वक्त उस पर रहम खाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी आंखों से सफाकियत झलक रही थी। माहम के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया, जबकि आंखों की पुतलियां खौफ से फैल गई। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, और इस बात का मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। माज ने खुश्क लहजे में उसकी आंखों में झांकते कहा, जबकि माहम खौफ से उसे देख रही थी। तुम्हें यहाँ उमैर लगारी ने भेजा है? माज ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए संजीदगी से उससे सवाल किया था, मगर माहम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो, माज उस पर धाड़ा, मगर माहम अब भी खामोश रही। अब माज के सब्र का पैमाना झलक गया था। उसने ट्रैगर पर दबाव बढ़ाया और अगले ही पल उसकी गन से गोली निकली थी। माहम के हलक से दिल खराश चीख निकली और उसने बेख्तियार ही अपने दोनों हाथों से चेहरे को छुपाया। सामने ही गन से गोली निकलकर सामने वाली दीवार में सुराख कर चुकी थी। माहम ने हैरानी से पलटकर दीवार को देखा। अब अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो अगली गोली तुम्हारे सर में लगेगी। माज ने एक बार फिर से उस पर गन तान ली, मगर यहाँ आकर माहम का जब्त जवाब दे गया। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, जबकि माज खामोशी से उसे रोते देख रहा था। मुझे उमैर लगारी ने ही यहाँ भेजा था, माहम ने हिचकियां भरते उससे कहा था। माज ने जताती नजरों से आगा जान की तरफ देखा। तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? माज ने अगला सवाल किया। वो आपको अपने भाई के केस से दूर रखना चाहता था, इसी वजह से उसने आपको रिश्वत लेने के लिए कोशिश की, और फिर इस केस में मेरे साथ झूठा ताल्लुक रखने के लिए आपको फंसाना चाहता था। माहम ने सर झुकाए रोते हुए कहा। कौन सी रिश्वत? माज ने उलझकर उससे सवाल किया। उसने मुझे कल रात को एक बैग दिया था, वो आपके कमरे में बेड के नीचे रखा हुआ है। उसमें करोड़ों रुपए मौजूद हैं। कल रात को आपके घर पुलिस का छापा पड़ेगा। वो लोग मुझे और उन पैसों को ले जाएंगे और आपको जेल में बंद कर देंगे। उसके बाद उमैर लगारी अपने भाई को आज़ाद करवा लेगा और आपको वहीं रखेगा। उसने आपसे बदला लेने के लिए यह सब प्लान किया है। माहम की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि सभी लोग दुम साधे उसकी बातें सुन रहे थे। माज अगले ही पल सरद से अपनी जगह से उठा और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने झुककर बेड के नीचे देखा तो एक काले रंग का बैग रखा था। उसने बैग खोल कर देखा तो उसमें 5-5 हजार के नोटों की कई गड्डियां मौजूद थी। वो बैग उठाकर लाया और उस बैग को माहम के कदमों में फेंका। तुम उमैर लगारी के लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? माज ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उससे अगला सवाल किया। उसका ये सवाल सुनकर माहम ज़ारो कतार रोने लगी। उमैर लगारी के भाई ने जिसको मारा है वो मेरा भाई था। माहम ने सुर्ख नजरों से माज की तरफ देखते कहा। उसकी बात सुनकर माज की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गईं। सभी लोगों ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रखा। वो लोग तुम्हारे भाई के कातिल हैं और मैं तुम्हारे भाई के कातिल को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम मुझे ही इन सब में फंसा रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई के कातिल को सजा हो?
मास ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरी छोटी बहन उमैर लगारी की कैद में है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये सब करूंगी तो वो मेरी छोटी बहन को छोड़ देगा। मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया है, अब मेरी छोटी बहन भी इस दुनिया से चली गई तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। माहम ने दुख से कहा, जबकि मास ने बेख्तियार ही अपना सर थाम लिया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई के कातलों को सजा हो? मास ने इस बार उससे नरम लहजे में सवाल किया। माहम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे चाहने से क्या होता है, वो सबको खत्म कर देगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। माहम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, उमैर लगारी ने तुम्हें खुद से मेरे पास भेजकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं जाने कितने ही महीनों से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूं और वो इतना बेवकूफ है कि उसने खुद तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मास ने गन वापस अपनी जेब में रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। लेकिन वो मेरी बहन को जान से मार देगा। मेरे माँ बाप भी उसी के पास हैं। वो हम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ेगा। माहम ने खौफ से मास की तरफ देखते कहा, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उन्हें सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मास ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखते उसे यकीन दिलाया, जबकि माहम अब भी बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी। समीना बेगम ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया। उनके गले लगते ही माहम फूट फूट कर रोने लगी। आगा जान ने भी उसके सर पर हाथ रखा। सबकी आंखों में आंसू थे। अपने भाई को बचाने की खातिर उमैर लगारी इस हद तक गिर गया था कि मासूमों पर जुल्म करने से भी नहीं कतराया था। मास घर से निकल गया। उसने अपने मोबाइल में माहम की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। उसने इमरजेंसी में पुलिस के आला अफसरान की मीटिंग बुलाई थी और उसने वो पैसों का बैग और माहम की रिकॉर्डिंग सबके सामने रख दी। ये लड़की इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद है, मगर ये बहुत डरी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ये सबके सामने आए, मगर अब मैं उमैर लगारी के घर पर छापा मारना चाहता हूँ और वहाँ से इसके माँ बाप और बहन को आज़ाद करवाना चाहता हूँ, जिन्हें उमैर लगारी ने अपनी कैद में रखा हुआ था। पुलिस के आला अफसरान ने उससे बात की इजाज़त दे दी, क्योंकि सारी हकीकत सबके सामने खुलकर आ गई थी। कुछ देर बाद पुलिस की 3 मोबाइल्स उमैर लगारी के घर की जानिब रवां दवां थी। उमैर लगारी इस वक्त अपने घर में ही मौजूद था। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर उसे हिरासत में ले लिया और उसके घर के सर्वेंट क्वार्टर से माहम के माँ बाप और उसकी बहन को भी बाजियाब करवा लिया। मास उन सबको लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और माहम के बाबा की मुद्दियत में उमैर लगारी और उसके भाई के खिलाफ FIR काटी गई। उमैर लगारी का सारा खेल उसी पर उल्टा हो गया था। अब वो खुद भी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद था। मास उन तीनों को लेकर घर आया था। माहम ने बेयकीनी से अपने सामने अपने माँ बाप को देखा था और भागकर उनके गले से लग गई थी। वो बार बार अपनी छोटी बहन को खुद से लिपटाते हुए प्यार कर रही थी। ये मंजर देखकर सबकी आंखें ही नम हो गई थी। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम हमारी मदद ना करते तो हम सब बर्बाद हो जाते। माहम के बाबा ने तशक्कुर से मास की तरफ देखा था। माहम उन्हें बता चुकी थी कि कल रात उसका निकाह मास से हो गया है।